विरासत न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासर अली। यहाँ इस वक्त ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ मैं, और आज यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ लॉ श्री किरण रिजिजू साहब जो है वो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डोगरे एडिशन का उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में ये ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के अंदर जो है वो इसका उद्घाटन किया जाएगा। क्या कुछ है इस प्रोग्राम में, आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। सर सामने पीछे जाएंगे। श्रीमती I will request this. I would request the honor Professor Arvind Jasodia, Registrar, University of Jammu, and I request the नमन करता हूं, अभिवादन करता हूं। ये तीसरा अवसर है जब मैं माननीय किरण रिजिजू जी से मेरी मुलाकात हो रही है। पहली मुलाकात मेरी हुई थी दिल्ली विश्वविद्यालय में, मैं प्राध्यापक हूं, और दिल्ली विश्वविद्यालय 2015 में एक दिल्ली विश्वविद्यालय ज्ञानोदय एक्सप्रेस थॉट प्रोसेस ये था, कॉलेज ऑन व्हील्स। तो ट्रेन चलेगी और बच्चे प्रोजेक्ट्स करते रहेंगे। वो एक अनोखा प्रयोग था जो कि हम जम्मू विश्वविद्यालय में फिर से लागू करने वाले हैं। और माननीय मंत्री जी उस समय होम मिनिस्टर थे, स्टेट होम मिनिस्टर, तो आपसे आग्रह किया हमने उनके घर पर जाकर के, मैं और प्रोफेसर दिनेश सिंह साहब वाइस चांसलर थे, मैं डायरेक्टर साउथ कैंपस था, कि इस ट्रेन को फ्लैग ऑफ करना है। और नॉर्थ ईस्ट में वो ट्रेन जा रही थी, 1200 बच्चे थे, उसका नाम ही था दिल्ली विश्वविद्यालय ज्ञानोदय एक्सप्रेस, और 7 स्टेट्स में वो बच्चे गए थे। और उसके कार्यक्रम के पूरी सफलता का अगर किसी को श्रेय जाता है तो माननीय मंत्री किरण रिजिजू के जाता है, जिन्होंने इंश्योर किया। The Vice Chancellor of the Jammu University, Sri Mir Professor Ji, my esteemed colleagues from the Jammu, Kashmir and Ladakh High Court, the professors and teaching faculty members of the university, their students. It is indeed a moment of pride that, and also a privilege to be part of this function where the constitution written in Dogri language is being released. In fact, I did not have any idea about this function. I was in Guwahati to attend to the Platinum Jubilee celebration in the Guwahati High Court, completion of 75 years. Honorable Minister also was there, and then I was guest there, and he has been kind enough to invite me that let's go to Jammu and be releasing this book. I was absolutely excited. I readily, obviously, agreed to the Honorable Minister's suggestion, and here I am. Well, yes, as far I am from the judges, the lawyers, we are quite familiar with what is constitution. Every day, being Article 14, 19, 21 are
quoted. Discussions are going on high flying, I've flown languages intermixed with legal maxims, Latin words. Very well, these are all very good academic exercises. But then, what do we do actually? What we are doing? We are cooking the food to be consumed by the common man. All exercise, the lawyers are doing the cases, the judges are deciding the cases. For what? To render justice for the man, common man who is on the street. He wants to know what has happened to my case. He is not so much interested in Article 14, 19, all those jargons, legal jargons, high principles. Yes, it is required. That's how we govern ourselves. But for him, the common man, he needs to know what is going to happen to my case. Then the challenge comes to make him understand that yes, your simple, apparently simple request for grant of certain relief has to be dealt with based on certain principles that are all contained in this Constitution, one of the best legal document ever conceived, I think. Secretary Madam Rita ji is here with the senior officers. I was very delighted. So I thought, let us go to Jammu and release him. So finally we could make it today a reality, which is going to be a very memorable occasion for all of us, because it is not just a translation of a document, but as Chief Justice has rightly mentioned, it is a step to make the life of common people easier. जब कोई बड़े वकील बहस करते हैं और जज सुनते हैं, फिर उसको न्याय देते हैं, तो वो जो आपस में जो वार्ता होते हैं, वो जिसके लिए होते हैं उसको तो पता नहीं होते हैं, और लीगल लैंग्वेज जो होते हैं और भी कठिन होते हैं। तो इसलिए आजकल हम लोगों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक सोच रखा है कि हम जो विदेशी सोच, कॉलोनियल माइंडसेट या कॉलोनी कहीं भी जाके देखो, आजकल आप देखते हैं छोटा छोटा पहचान कहीं ना कहीं नजर आता है, अंग्रेजी में लिखा हुआ, अंग्रेजों का कुछ ना कुछ निशाना कहीं ना कहीं नजर आते रहते हैं। धीरे 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 करके इसको साफ करना है। विधान को अलग अलग भारतीय भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का जो व्यवस्था है, ये कई सालों से शुरू किया हुआ है, और ये विशेष रूप से जो आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, इसका कई सालों से 2003 में डोगरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। तब से कोशिशें कर रहे थे, लेकिन अब जाकर के ये काम पूरा हुआ है। तो संविधान में तो 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो मुझे लगा कि ये डोगरी का इतना देर कैसे हो गया। तो हमारा डिपार्टमेंट ने बताया कि ये तैयार काफ़ी लोग लगे हुए थे। तो विशेष रूप से जिसका आज हम लोग ने सम्मान किया, इस यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग योगदान किए हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के योगदान के बिना ये संभव ही नहीं था। तो मैं सारे यहाँ के प्रोफेसर, फैकल्टी, यूनिवर्सिटी को बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपके वजह से ये बहुत बड़ा काम आज शुरू हो पाया है। देखिए, जब डोगरी के बारे में तो मुझे कुछ ज़्यादा बताना नहीं है, लेकिन इतना तो जरूर है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं का सबका अपना अपना एक प्राचीन इतिहास और साहित्य होते हैं। इन्हीं भाषाओं के कद का सम्मान करना तो लोकतांत्रिक देश के लिए हमारा आवश्यकता है, लेकिन डोगरी भाषा का जो इतिहास है, यहाँ तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत प्राचीन है। और एक चीज जो मुझे जानकारी में प्राप्त हुआ, संविधान सभा ने जब औपनिवेशिक मानसिकता को खत्म करने के हेतु और अपनी भाषाओं का गरिमा बढ़ाने का देवनागरी लिपि में लिखने का जो बात हुई थी,
तो उसमें आधिकारिक रूप से मुंशी अयंगर सूत्र के आधार पर 14 सितंबर 1949 के दिन भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा के लिए प्रावधान कर दिया गया और अनुच्छेद 345 के तहत हर राज्य भाषा को अपनी राजभाषा चुनने का अधिकार दिया गया था। तो इसका मतलब संविधान में ही जितने भी जो हमारा भारतीय राज्य भाषाएं हैं उसको आगे बढ़ाने का प्रावधान संविधान में दिया गया था। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देरी तो हुई है। ये सारा काम 60 और 70 के दशक में हो जाना चाहिए था, ये लेट तो हुआ है। इसको तो मैं इस देश का कानून मंत्री होने के नाते मैं मानता हूँ ये लेट हुआ है, लेकिन अब इसको लेट तो हुआ है लेकिन बढ़ चढ़ करके उसको आगे बढ़ाने में लेट नहीं करना है। तो इसलिए आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर एक हम लोग मन में ठान लेना चाहिए कि इसको हम लोग आगे बढ़ाना है।